Welcome all to the pre-mom clinic class by Dr. Mohini Agrawal. So this is something very new concept as far as Punjab, North Punjab, Bhatinda is concerned. So in this aim is basically the role of dietitian, physiotherapist, and the Garbh Sanskar education during antenatal. We all know there is a role of healthy lifestyle, food, exercise, and what we are, what we eat and think. तो ये हम प्रेगनेंसी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम प्रेगनेंसी में कैसे रह सकते हैं, इससे हाउ यू गेट बेटर. तो this topic we are starting discussing today with our three very important, and we are very thankful, so they have given us the valuable time for this session. This is Dr. Manali Grover, Kanika Malhotra ma'am from Delhi, and Swarupanjali Pawar from Solapur, Maharashtra. So, without wasting further time, I request Dr. Manali to start over and give a brief highlight about the role of physiotherapy, how it helps during pregnancy. प्रेगनेंसी में जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती है, जो बार बार जाना पड़ता है, pelvic flow को strengthening, and what is the role of pelvic flow physiotherapy even during labor, जब patient normal labor Yeah. bear करता है तब कैसे, and postpartum how it. Yes. Okay. Yeah. Sure. So, thank you, Dr. Mohini. Thank you for giving me this opportunity. Recording in progress. So, exercise. First, I'll talk a little bit about exercises in pregnancy, and then we'll shift to pelvic flow. Right? Will that be fine? So Yes, we ma'am. we And know I think much of that we can lot use of Hindi and English both. हाँ Hindi. हाँ ठीक है बिल्कुल. तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बहुत सारे लेडीज को यही पता नहीं है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज, कब करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं, या व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक. तो ये सब चीजें ना पता होने की वजह से वो एक्सरसाइज शुरू ही नहीं कर पाते. राइट. So सबसे पहले तो you should exercise during pregnancy. It is very important to exercise during pregnancy. It will help you and your baby both immensely अगर आप exercise करते हो. Secondly, what is the right time to start exercises during the time of pregnancy? So the right time to start the exercises during the time of pregnancy is around 12 weeks. Okay. So 12 weeks में you are ready to do most of the exercises like strength training also, mobility exercises, brisk walking, yoga, आप सब शुरू कर सकते हो by 12 weeks. And you can exercise right up till the 39th week, 40 weeks, like right till the end of the pregnancy आप अपने exercises continue कर सकते हो. थोड़े से precautions लेने होते हैं when you are pregnant and you are exercising. So one precaution is you should not exercise to the point of exhaustion. मतलब बहुत एकदम you should not be breathless while exercising. ये ध्यान रखना होता है. The temperature has to be right. आपको आपकी water intake ठीक रखनी होती है. तो ये सारे precautions होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम लेने चाहिए एक्सरसाइज के टाइम पे. बेनिफिट्स आर न्यूमरस. तो लॉट ऑफ वुमेन हैव प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अभी भी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन ने ज्वाइन किया है दे कैन मे बी शेयर aches and pains, body pains during pregnancy and postpartum also are very common. तो most of this pains and aches जो होती हैं प्रेगनेंसी, जैसे बैक पेन हो गई है ना, इवन लीकेज ऑफ यूरिन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो होती है, पोस्टपार्टम भी होती है. ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है. सो द बेनिफिट्स आर ह्यूज. नाउ कमिंग टू पेल्विक फ्लो. तो लॉट ऑफ वुमेन आर नॉट अवेयर अबाउट पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, है ना, एंड कब करनी चाहिए, कौन सी होती हैं, एंड व्हाट इज द राइट टाइम to start this exercises in pregnancy. So just to give you कि क्या होता है pelvic floor. This is a pelvic girdle. ये आपका pelvic bone है. और जो pelvic floor होता है ये pelvic floor muscles होते हैं. They are placed here, exactly here. So this is are your hip bones. ये दोनों आपके hip bone है. This is your pubic and this is your tailbone. ठीक है. आपकी pelvic floor muscles यहाँ पे placed होते हैं और आपका यूट्रस, आपका यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम इसके ऊपर है. ठीक है. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यू कैन इमेजिन पेल्विक फ्लो बहुत स्ट्रेच्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग वेट ऑफ द बेबी. आपका पूरा पोस्चर चेंज हो रहा है ना, आपकी पूरी बैक टिल्ट हो रही है. तो जो पेल्विक फ्लोर है वो पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हो जाता है. राइट. एंड
after the delivery, because of the stress, the stretching which happens during the time of delivery, the pelvic floor is hugely impacted, है ना? तो बहुत फर्क पड़ता है. तो that's why being aware of your pelvic floor first, कि कहाँ है pelvic floor, is very important, right? Then doing the exercises of the pelvic floor, जिसको हम pelvic floor muscle training भी बोलते हैं, during pregnancy is very very important. और अभी बहुत रिसर्च है जो इसको प्रूव करती है कि हमें करने ही चाहिए. The benefits are immense. अगर आप regularly during pregnancy pelvic floor muscle training करते हो, along with the other exercises जो आपकी back की हैं, core की हैं, तो chances of low back pain, having urinary incontinence during pregnancy, that is the leakage of urine, बहुत कम हो जाता है. Also, it will help you not only in pregnancy to remain fit, and maintain good strength and flexibility of your pelvic floor, but also it will help you during the time of the birth of the baby, that is during the time of labor. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो काफी लोगों के लिए नया हो सकता है कि lot of women don't know that they can move during the time of birth of the baby. और not only it's recommended, it is helpful. अगर आप प्रेगनेंसी बर्थ के टाइम जब आप लेबर में होते हो, अगर आप मूवमेंट करते हो, आपने बॉल देखा होगा, स्विस बॉल और लेबर बॉल जिसको कहते हैं, उस पर बैठ के मूवमेंट करते हो, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करते हो, इसको हम पेल्विक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, राइट? और अपराइट पोजीशन रखते हो एंड यू आर अलाउड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब आप इट इज एंकरेज, आई वुड यूज द वर्ड, इफ यू आर एंकरेज टू मूव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, it will help you a great deal. So this will not only help you to have a good labor experience, आपका पेन आपको कम महसूस होता है. Now there is a research also which shows us कि अगर आप you have freedom of movement in pregnancy, अगर आप you're up and about, तो आपका labor time reduce होता है, आपको पेन और fatigue भी कम महसूस होता है. तो ड्यूरिंग लेबर अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्टिव रहते हो, इट विल हेल्प यू विद द बर्थ ऑफ द बेबी. ऑल्सो अगर आप पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग रेगुलरली कर रहे हो, तो हेलो. चांसेस ऑफ हैविंग टेयर, जब बर्थ मैम ऑफ डॉक्टर बेबी होता मोहिनी है, ज्वाइन कर लो आपके समटाइम्स देयर इज अ कंसल्ट मैम. टेयर, राइट? तो चांसेस ऑफ हैविंग अ हाई डिग्री टेयर नहीं नहीं, ऑल्सो ये दूसरा मेरा रिड्यूसेस. हॉस्पिटल का भेजिए, ओके, मैं आपको तो व्हाट्सएप पे आप मेरे पेल्विक नंबर फ्लोर से. ट्रेनिंग रेगुलरली करते हो, चांसेस ऑफ ठीक है. टेयरिंग अप बहुत कम हो जाती है. दैट्स व्हाई पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल हेल्प यू नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट आपके बेबी के बर्थ के टाइम भी आपको बहुत हेल्प करेगा. नाउ दिस पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग आपको प्रेगनेंसी में और बर्थ में तो हेल्प कर ही रहा है, बट पोस्टपार्टम ऑल्सो बहुत सारे लेडीज को प्रॉब्लम होती है आफ्टर डिलीवरी. एक तो उनका पॉस्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, देन दे हैव लो बैक पेन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और समटाइम्स इवन प्रोलैप्स, मतलब जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हमने बताया आपके पेल्विक फ्लोर के ऊपर, द ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स आर रेस्टिंग, दैट इज द ब्लैडर, हाँ मैम, then the uterus, मैं इसे right, वापस भेजती and the हूँ. rectum. कई बार organs नीचे आ जाते हैं due to weakness of the pelvic floor because of pregnancy and birth. तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं अगर ग्रेड कम है, थ्रू पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग. अगर आप करते हो रेगुलरली प्रेगनेंसी में, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ऑल दिस ऑल्सो रिड्यूसेस कंसिडरेबली. सो मैनी अ टाइम्स मोस्ट ऑफ द वुमेन हु आर नॉट अवेयर कि करनी चाहिए एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी के टाइम पे या पोस्टपार्टम में, they are more likely to have this incontinence problem or pelvic pain problem or even prolapse problem later in their life. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर आप ध्यान ना रखो अपने प्रेगनेंसी टाइम में, पोस्टपार्टम टाइम में, then they'll prop up after 45 or 50. Because at that time also, because of the age related decline in the hormone, आपके muscles और weak हो जाते हैं, muscle mass और कम हो जाता है, and if you don't exercise, then your chances of developing ये सारे problems, urinary leakage वगैरह काफी बढ़ जाता है. तो अगर आप करते हो, आप ध्यान देते हो during your pregnancy, you are not only making your pregnancy easier and more healthier, you're also helping the labor. मतलब आप बर्थ में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आपका बर्थ इजी हो जाता है, बर्थ के टाइम के बाद की रिकवरी है वो फास्टर हो जाती है, यू आर मच बेटर, यू आर अप एंड अबाउट. डिपेंडिंग अपॉन आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या आपका सी सेक्शन हुआ है, you can start exercising, right? So after a normal birth,
So, after a normal birth, you can start. Initially, 6 weeks rest is recommended, but simple pelvic floor exercises in pain-free range, आप whenever you feel ready, आप शुरू कर सकते हो. After normal birth और C-section. Proper exercises के लिए after normal birth 6 weeks के बाद हम recommend करते हैं, and after a C-section after around 3 weeks, that is around 12 weeks. So again, I would say कि it is a good idea to see a physiotherapist after you have given a birth, because आपकी body change हुई है, you know, lot of, because आपका you have given a birth, आपका posture change हुआ है, lot of changes have taken in your body, and a physio after a checkup can tell you कि आप what kind of exercises are right for you. So it is very important to start this fitness journey during the time of pregnancy. Even better before, if you're thinking of pregnant, the best time is to start before getting pregnant. But if not, pregnancy also is a great time to start exercising, especially focusing on your pelvic floor, considering इतने benefits हैं. इसका awareness बहुत कम है ladies में, and that's why we are stressing. We have, you know, specially included this pelvic floor in this seminar, because exercise करना बहुत ladies को पता है कि करना है exercise, but to focus on your pelvic floor and what रील में immense सिर्फ एक थोड़ी सी benefit it ग्लिम्स will दिखाई give थी you if वेलवेट you do it. कलेक्शन की और आप और लोगों ये के काफी बिजनेस लोगों को की नहीं लाइन पता लग है. गई. सो जो हमारे एक्सरसाइज सेशंस होते हैं, we focus specifically on pelvic floor, and also pelvic floor training is not same for everyone, you know, so it's very important. many a times YouTube पे देख के या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख के हम करते हैं एक्सरसाइज, sometimes we are doing it right, but many ladies don't do it right because they don't know exactly which are the pelvic floor muscles. So it's very important to identify your pelvic floor muscles first and then do the right exercises. So this is very important. So if anyone has any questions about pelvic floor muscle training or exercises in pregnancy, please feel free to ask or to put in the chat section. आपको कुछ भी जानना है exercise in pregnancy के बारे में, या pelvic floor के बारे में, या pelvic floor exercises during pregnancy या postpartum, तो आप please chat में लिख सकते हैं, और आप you can just come online and ask me. Yes, any questions? Please go ahead. Dr. Mohini, are you there? Yes, ma'am. I'm there. Yes. Yeah, ma'am. आप And बताओ, आप any questions from your side or anyone else? किसी के भी मेरे को नहीं लग रहा कोई क्वेश्चंस है. मैम मेरे को हो रहा है कि आप थोड़ा उनको एक्सरसाइज भी बता दीजिए कि हाउ कैसे करते हैं कुछ, हाउ द बेसिक की स्ट्रेंथनिंग भी होती है, रिलैक्सेशन भी होती है, वरना फीमेल्स मतलब क्योंकि कीगल एक्सरसाइज सबको पता है कि कीगल क्या होती है एंड दे डू द स्ट्रेंथनिंग, Okay. बट लेबर So I में will. ओवर डूइंग ऑफ कीगल एक्सरसाइज, तो थोड़ा एक मैं चाहती हूँ कि ओरिएंटेशन दे दो आप उनको. Sure. So so this is so I will be showing you how to do Kegel exercises, that is a pelvic floor strengthening exercises using this pelvic model. तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं. ठीक है, तो दिस इज अ पेल्विक मॉडल, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. और ये दोनों हिप बोन्स हैं, ये प्यूबिक बोन है, आगे वाला बोन आपके बेली के बिल्कुल नीचे वाला, और ये आपका टेल बोन है. ठीक है, so pelvic floor muscles are placed here, right? It's here. So when we say Kegel exercises or pelvic floor strengthening exercises, we are supposed to use this muscles. तो इस muscle को हम कैसे use करेंगे? सबसे पहले आपको you have to contract, or you can say squeeze the muscle, as if imagine you're passing urine and you have to stop passing urine. What would you do? You would contract, right? Same thing. आपको squeeze करना है. And second component is lift. Squeeze and lift. डॉक्टर मनाली इन हिंदी ऑल्सो. हाँ, तो आपको पहले जैसे आप इमेजिन करो कि आप, अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि लिफ्ट का डोर क्लोज हो रहा है. तो जैसे लिफ्ट का डोर क्लोज हो रहा है, सेम मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है ऐसे. ठीक है, तो स्क्वीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, एंड आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है. यू कैन इमेजिन कि आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जा रहे हो, तो स्क्वीज एंड लिफ्ट. ये मैं लाइंग डाउन पोजीशन में एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप बैक पे लेटे हो और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और लिफ्ट कर रहे हो.
और लिफ्ट करने के बाद आपको होल्ड करके रखना है। आप जितना होल्ड करके रख सकते हो उतनी देर रखना है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स 5 4 3 2 1 एंड देन रिलैक्स। बोथ द कंपोनेंट, दोनों चीजें, पहले आपने जो लिफ्ट किया है उसको नीचे लाना है और जो आपने होल्ड किया है उसको भी रिलैक्स करना है। ये दोनों सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। दैट्स हाउ यू यूजिंग योर पेल्विक फ्लोर। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ यू आर यूजिंग फॉर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सेकेंड इज आप रिलैक्स कैसे कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों में टाइट पेल्विक फ्लोर भी होता है। दे हैव वेरी टाइट पेल्विक फ्लोर। दिस ऑल्सो कैन because of this you can have problem, especially during the birth of the baby। बहुत टाइट पेल्विक फ्लोर हो रहा है, आपको डॉक्टर बोल रही है रिलैक्स बेयर डाउन, पर आपको पता ही नहीं है कहाँ बेयर डाउन करना है। तो दिस एक्सरसाइजेस फर्स्ट विल मेक यू अवेयर कि क्या है पेल्विक फ्लोर, मुझे कहाँ बेयर डाउन करना है, क्या रिलैक्स करना है ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी। तो अब दोनों करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथनिंग भी करना जरूरी है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी करना बहुत जरूरी है। तो रिलैक्सेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस, स्क्वीज लिफ्ट। ओके, इसको कॉन्ट्रैक्ट करें और उसको लिफ्ट करें एंड उसको फिर रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन लॉन्गर होगा यहाँ पे, जैसे नीचे है 10 8 6 4 2 and 0। so we are focusing more on relaxation और बहुत ग्रेजुअल करें। तो ये आप दिन में एक बार में आप 10 टाइम्स कर सकते हैं और दिन में 3 टाइम्स। दैट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज। ये आप कभी भी शुरू कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज लाइक 12 वीक्स, उसके पहले भी कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज आर वेरी सेफ एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी। अपने प्रेगनेंसी के एंड तक एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। आफ्टर डिलीवरी भी आपको ये एक्सरसाइज करने चाहिए एज एंड व्हेन यू फील रेडी, बिकॉज ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे आपको लगता है आप रेडी हैं तो आप धीरे धीरे ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। आई थिंक any क्वेश्चंस तो नहीं है मैम अभी चैट बॉक्स में। Okay, there's no हाँ question in the chat तो box, हाँ yeah. तो मैं So बस anyways, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख के डेफिनेटली रख सकते हो। तो मैं जस्ट समराइज करती हूँ। पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेंथनिंग एंड रिलैक्सेशन आई थिंक बोथ है। कब करनी है कैसे करनी है, आई थिंक थर्ड ट्राइमेस्टर में रिलैक्सेशन ज्यादा करते हैं, पहले यू कैन डू स्ट्रेंथनिंग, ऐसे Yes, सेफ है। yes, you can force, yeah. Yes. There is no contraindication, but still, in some of the cases, high risk placenta previa bleeding. तो अब better है to consult and then start. And always मैं patients को ये बोलना चाहूंगी कि कुछ भी शुरू करने से पहले या एक बार मतलब कंसल्ट गायनेक या फिजियोथेरेपिस्ट पे सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ डूइंग जस्ट यूट्यूब पे देख के ओरिएंट होना मतलब करके देन यू स्टार्ट डूइंग इट फर्स्ट एटलीस्ट Yeah, टेक अ सिंगल कंसल्टेशन। सेकंड yes, इम्पोर्टेंट very जो important. क्योंकि खुद देख के ना वो नहीं समझता। सेकंड मेरे को ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अवेयर होना। जब हमें पता चल जाता है ना कि इससे हम ठीक हो सकते हैं, ये हमें बर्थ में हेल्प करता है, वो एक अलग ही हाँ, प्रकार का कॉन्फिडेंस देता है जिससे हम डरते हैं बिल्कुल। कि डिलीवरी में क्या होगा, दर्द होगा। क्योंकि मैंने देखा है पेन की वजह से पेशेंट इतना टाइट कर लेता है, दे आर नॉट एबल टू रिलैक्स एंड पुश। वो जोर तो पूरा लगा रही है पर वो ओपन अप नहीं होता। मतलब गायनेक के लिए तो रियल स्ट्रगल होता है वो, मतलब Yes, आप बीच में से ना कनेक्ट मतलब करवाना, उस हाँ टाइम कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप तो बहुत वेल फिर कनेक्टेड होते हो। इट्स हम्म मच मोर इजियर टू बेयर डाउन। जब आपको डॉक्टर बोल रही है रिलैक्स करो, आपको पता है क्या रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना तो है यू आर टाइटनिंग इट मोर इंस्टेड ऑफ मोर। रिलैक्सिंग। तो आप अपने लिए मुश्किल कर देते हो एंड देन चांसेस ऑफ टेयरिंग अप बहुत ज्यादा increases। ज्यादा। So yeah, this is very important to do। एक question है, I think one question is there हाँ that can ले I'm लीजिए 12 weeks, मेरा 12 वीक्स का वीक चल रहा है, मेरी अभी स्कैन पेंडिंग है क्या? हाँ, आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई डॉक्टर ने स्पेसिफिकली बोला नहीं है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो बिल्कुल। किगल एक्सरसाइज आर वेरी सेफ एक्सरसाइजेस। एंड दैट्स व्हाट मैम आई। एक और है आई थिंक 7 मंथ का, वो भी रिप्लाई कर दीजिए। 7 मंथ में रिस्की नहीं, बिल्कुल भी रिस्की एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी रिस्की एक्सरसाइज नहीं है। इट इज द मोस्ट सेफेस्ट एक्सरसाइज एंड यू शुड डू बोथ स्ट्रेंथिंग एंड रिलैक्सेशन, बट लिटिल मोर ऑफ रिलैक्सेशन नाउ, बिकॉज बर्थ ऑफ द बेबी के लिए रिलैक्सेशन आपको हेल्प करेगा। बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी यू हैव टू रिलैक्स द पेल्विक फ्लोर।
मैंने और मेरी जितने आप मीटिंग चल वेल रही है, कनेक्टेड बाद में होंगे, मिलते जैसे हैं। ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी योर पेल्विक तुमको बोलना कैनाल इज बाद में मिलते ओपनिंग, हैं राइट, मीटिंग में। द आउटलेट हाँ। ये ओपन हो रहा है, और जितना आप पेल्विक फ्लो रिलैक्स कर पाओगे, आप टाइट नहीं रख पाओगे, देखो ड्यूरिंग द बर्थ बेबी पेन होता है, एंड एज अ रिस्पॉन्स टू पेन हम बॉडी टाइट कर लेते हैं। पर अगर आप ये रिलैक्सेशन रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, तो ड्यूरिंग बर्थ आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो जाता है कनेक्ट करना, रिलैक्स करना। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ ये करना होता है, और अगर आप रेगुलरली ये करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ लेबर एंड पोस्टपार्टम दोनों में। करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए 7th मंथ में। Okay, Dr. Manali. So we'll proceed for the next. And या thank you श्योर। for the very informative session. Anybody want to learn and say, you can follow ma'am on Instagram also. Ma'am वहाँ पे भी बहुत general अपने देते रहते exercises and everything. So you will be benefited. So thank you. So we'll proceed थैंक for यू the सो next. मच। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. We'll proceed for the next session, and I think it's most awaited. खाना क्या है pregnancy में? हम क्या खाएं, क्या ना खाएं? So we welcome Kanika Malhotra ma'am from Delhi. She has a vast experience regarding the diet plan in all of the dietitians, all of the field of life, and most of in the pregnancy. So welcome you, ma'am, and thank you. Thank you so much. शुरू करने से पहले I'll just like to check if you can see my screen or not. Yes, ma'am, it's visible. We Can can see. it's visible? Yes, ma'am. अच्छा, दूसरा, I would also like everybody to, if they can, would request them to switch on their cameras. थोड़ा human faces होते हैं तो connect करना थोड़ा better हो जाता है। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं, प्लीज चैट बॉक्स को यूज करें और मुझे अपने चैलेंजेस बताएं कि अभी आप कौन से वीक में हैं, या खाने से रिलेटेड कोई ऐसी टिप है जो आपको नहीं पता फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जब हम प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होते हैं, बहुत सारे सजेशंस फैमिली फ्रेंड्स हमें मिलते हैं। एंड सो आई वुड लाइक टू नो एंड अंडरस्टैंड, प्लीज यूज द चैट बॉक्स। कहीं पर भी आपको लगे कि मुझे सवाल पूछना है, कोई सवाल छोटा बड़ा सही गलत नहीं होता है, सवाल सवाल होता है। सो प्लीज engage more, use the chat box if you cannot switch on your cameras. And I'll start the session. I'm based out of Delhi. Just a small introduction so that you know who I am. मैं 17 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है, मैक्स फोर्टिस टू नेम अ फ्यू, एंड I've been doing pregnancy and lactation dedicatedly classes for all my life. So this is something that I keep doing, and hence I know बहुत सारे सवाल होते हैं when it comes to pregnancy. Is my screen moving? Yeah. Yes, ma'am. So no questions in the chat box. कोई challenges नहीं है खाने से related, since Dr. Mohin you mentioned के बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको जो भी याद आए, आप में से जिसको भी, प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अच्छा, अमनदीप इज आस्किंग, मैम मेरा 13 वीक चल रहा है, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं क्या, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड करेक्टली? यस अमनदीप, बिल्कुल ले सकते हैं। भिगो के आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब आप ले सकते हो सुबह ब्रेकफास्ट में, सबसे बेस्ट रहता है। भिगोए हुए ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, हैवी नहीं होते हैं। एंड यू कैन वेरी मच टेक ड्राई फ्रूट्स, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं विच आर ग्रेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर बेबीज ब्रेन। सो बिल्कुल लीजिए, और बिल्कुल ले सकते हैं आप। मैम ओके। मैम हाँ जी, अंजीर और किशमिश। अंजीर और किशमिश ले सकते हैं, गर्म नहीं होती है। इफ यू आर ट्राइंग टू आस्क दैट, आप उसे भिगो के अगर 2 अंजीर या 1 अंजीर से शुरुआत करें, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो 2 अंजीर आर फाइन। चाहे आप सुबह ब्रेकफास्ट में लीजिए, चाहे आप शाम को इवनिंग टाइम पर दूध के साथ ले लीजिए, अंजीर वाला दूध या अंजीर वाला
शेक भी बना सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्नैक, इन बिटवीन स्नैक, जो आपकी ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बीच का जो वक्त होता है, जो उसके बीच की भूख होती है, सो वहां पर आप इसे जरूर ले सकते हैं। ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन मैम। बेस्ट फ्रूट कौन सा होता है बेबी के लिए, क्या बेनिफिट होता है? सारे फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब अच्छे होते हैं, बट हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आप पपीता और पाइनएप्पल मिक्स्ड स्टडीज हैं कि वो नहीं लेना चाहिए, बट उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्शंस को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ब्रोमीलेन बोलते हैं हम उसको, जो पाइनएप्पल में होता है, और पपाया में पेपेन करके एक एंजाइम होता है। सो यूजुअली डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी ये रेकमेंड करते हैं कि इन दो फ्रूट्स को छोड़ करके बाकी सब सीजनल फ्रूट्स, अभी जैसे आजकल आंवला है, गुआवा है, मौसमी है, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, पियर, ये सब आप ले सकते हो। तो जो भी मौसम का सीजनल फल है, कोई फैंसी फ्रूट्स नहीं चाहिए कि आपको कोई चीज कहीं आपने पढ़ी और वो आपके लोकल शहर में अवेलेबल नहीं है। सो कोई ऐसा फैंसी लेने की चीज जरूरत नहीं है। जो सीजन में आपको दिख रहा है, मार्केट में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का, ट्राई टू स्टिक टू ऑर्गेनिक ऑप्शंस। आजकल मिलावट काफी ज्यादा होती है, रात रात में लौकी पका दी जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जहां से भी ले रहे हैं वो ट्रस्टेड सोर्स हो, जहां से भी आप फल खरीद रहे हैं, बस इस चीज का ध्यान रखें। बाकी भी चीजें हम कवर करेंगे, आप प्लीज कीप ऑन यूजिंग द चैट बॉक्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज के वेबिनार में ये है कि जो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस है, हमें ओवर ईट भी नहीं करना है, अंडर ईट भी नहीं करना है। हर एक न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो हमें प्रेगनेंसी में ध्यान देना चाहिए। मैंने पढ़ा किसी का 7 मंथ है, किसी का 12 वीक्स है। तो अभी भी एज पर योर डॉक्टर का एक्सपेक्टेशंस, वी नीड टू ईट राइट, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो पौष्टिक रहे एक तरह से, सो दैट आप जो बेबी डिलीवर करें, व्हेन यू आर डिलीवरिंग, यू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द डिलीवरी, फॉर लैक्टेशन एंड पोस्टपार्टम एज वेल। सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जो प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन होता है वो बहुत एसेंशियल होता है, बिकॉज जो आप खाते हैं वो डायरेक्टली आपकी बेबी की ग्रोथ पे अफेक्ट करता है। सो इसीलिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्लान is one of the best gifts that you can give it to your baby, I would say, right? So अगर हम नहीं खाते हैं, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, चाहे हम अंडर ईट करें, चाहे हम ओवर ईट करें, चाहे हम गलत खाएं, इट कैन लीड टू एनीमिया, जो आयरन की कमी होती है, ठीक है। उसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बीपी, जो प्रेगनेंसी में कई बार इंड्यूस हो जाता है, प्री मेच्योर बर्थ, जल्दी वक्त से पहले बर्थ हो जाना बेबी का, ठीक है, लो बर्थ वेट, कम वजन का बच्चा पैदा होना, और बाकी के कॉम्प्लिकेशंस, या फिर इवन मिसकैरेज एंड अबॉर्शन आल्सो दैट आई हैव सीन। सो न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जो आपका बच्चे का ग्रोथ है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हमें अंडर न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा वजन सही तरह से गेन हो, अप्रोप्रिएट गेन हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। एंड ईटिंग हेल्दी डज नॉट मीन कि आपको 2 जनों का खाना खाना है, नहीं, आपको सिर्फ सही खाना खाना है, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहे, और जो आपका डिलीवरी है, बच्चे का वेट सही रहे, ऑप्टिमम रहे, एंड यू आर एबल टू रिकवर बेटर एज यू डिलीवर। तो आप जो खाते हैं, आपका बच्चा वही बनता है, एंड दैट इज व्हाट इम्प्लाइज फर्दर। बहुत सारी मिथ्स और फैक्ट्स मैं डेली रूटीन में अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ, जहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिथ इज के अगर आपको कोई क्रेविंग होती है, सो वो आपकी, प्रेग्नेंट वुमेन ओनली क्रेव द फूड देयर बॉडीज नीड। सो क्रेविंग बहुत अलग अलग होती हैं हर इंसान के लिए। वो आपको पैटर्न आपको देखना पड़ता है कि वो स्पाइसी की तरफ है, या स्वीट की तरफ है, या सावर खट्टे की तरफ है। सो वो आपको पैटर्न देखना पड़ता है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी वेरी पर्सनलाइज्ड व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द क्रेविंग्स।
एक और ज्यादा मुझे मिथ सुनने में आती है लेडीज से कि अब आप प्रेग्नेंट हो गई हो तो आपको, जैसे मैंने बोला, 2 जनों का खाना खाना है। नहीं खाना होता है। हमें उतनी, सिर्फ 300 कैलोरीज पर डे के हिसाब से हमें दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में हमें बढ़ानी होती है, ताकि जो हमारा वजन है वो अप्रोप्रिएट तरीके से 11 से 12 किलो के बीच में हमारा गेन हो। सो सिंस आई मेंशन्ड अबाउट वेट, ये आपके वेट गेन के टारगेट्स होने चाहिए कि जैसे आपका प्री प्रेगनेंसी वेट है डिवाइडेड बाय योर बॉडी मास इंडेक्स, तो वो आपका एग्जैक्ट आपका फिर आ जाता है कि प्री प्रेगनेंसी वेट आपका कितना होना चाहिए, कितना आपको गेन करना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा वेट गेन होता है उसमें, क्योंकि मेरी बॉडी बढ़ रही होती है, मेरा फीटस इज ग्रोइंग, माय प्लेसेंटा इज ग्रोइंग, माय यूट्रस इज ग्रोइंग, क्योंकि उसको बच्चे का जो बॉडी है वो अकोमोडेट करना होता है यूट्रस को। माय ब्रेस्ट टिश्यूज आर ग्रोइंग, पानी का इंटेक बढ़ता है, ब्लड फैट, सो ये सब मिल मिला के 12 से 13 किलो important होता है, which is why, like Dr. Manali and Dr. Mohini mentioned, exercising and following a healthy diet will help you touch your normal weight. हमने देखा है बहुत बार लेडी स्ट्रगल करती हैं पोस्टपार्टम वेट लॉस के लिए। सो अगर आप सही तरीके से प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में खाते हैं तो आपको बाद में वेट लूज करने की दिक्कत नहीं आती है। सो ये हमारे वेट गेन के टारगेट्स होते हैं। जैसे आप अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखें, आपको अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है। हालांकि बीएमआई सिर्फ एक सोल इंडिकेटर नहीं होता है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि मेरा वजन सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आपको अपने डाइटिशियन या डॉक्टर के साथ काम करना पड़ेगा टू एक्चुअली सी कि आपका जो बॉडी है वो किस उसमें है, बीएमआई की रेंज में है। सो जस्ट टू इक्विप यू विद अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज हियर, अगर आपका जो बीएमआई है 19 से कम है तो 13 से 18 किलो टोटल आपको वजन गेन हो सकता है, आपको करना चाहिए। अगर आपका एवरेज बीएमआई है 20 से 26 के बीच में, तो 11 से 16 के बीच में, किलो के बीच में, इट इज ओके। लेकिन अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, 26 से 30 के बीच में है, तो 7 से 8 किलो इज दी desired weight gain. And if you are carrying a twin pregnancy or triplet pregnancy, then of course things change. So you need to work with very closely with your treating doctor, dietitian, and your fitness professional के आपका जो वेट गेन है, डिजायर्ड वेट गेन है, वो उसके हिसाब से चले। अब हम अगर फूड ग्रुप्स की बात करें, एनर्जी भी हमारे लिए जरूरी है, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी चाहिए। तो जो मेरे वाइट कार्ब्स होते हैं वो मुझे अवॉइड करने होते हैं। जो होल ग्रेन ब्राउन कार्ब्स होते हैं तो वो हमें ज्यादा प्रेफर करने होते हैं। गेहूं, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, ये सब चीजें आपको ज्यादा लेनी है। मैदा, ब्रेड्स, कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी होती हैं। जब हम अपने प्रोटीन्स की बात करते हैं, बहुत जरूरी होता है कि हम अपने नॉर्मल रूटीन रिक्वायरमेंट से 15 ग्राम ज्यादा हम दिन भर में लें, विच इज अ 20% इंक्रीज। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडा, चिकन, फिश, पनीर, ऑफ कोर्स प्लीज चेक द सोर्स ऑफ पनीर, प्लीज बी कॉन्फिडेंट कि पनीर आपका जो है वो अडल्टरेटेड नहीं है, फेक पनीर नहीं है, बिकॉज काफी चीजें आ जाती हैं आजकल। सो बी केयरफुल। दालें, स्प्राउट्स फॉर वेजिटेरियंस, नट्स जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी, सो ऑल दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जहाँ तक फैट की बात करें, अगेन नट्स ऑल्सो फॉल इन टू दिस कैटेगरी। बट जितना भी अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो भी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, सॉलिड में आप घी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। कुकिंग कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो व्हाट यू कैन यूज। बट यूजुअली हमारे पंजाबियों में सरसों का तेल और रिफाइंड इस्तेमाल किया जाता है, घी इस्तेमाल किया जाता है। तो जस्ट बी केयरफुल दैट यू डोंट ओवर डू इट। अगर आप कोई नट्स के लड्डू या घी का लड्डू ड्राई फ्रूट्स के साथ बना करके खा भी रहे हैं, अभी सर्दियां भी हैं, तो फॉर दैट मैटर अगर हम पिन्नियाँ बना के खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि कुछ उसके अंदर रागी या ज्वार या मिलेट्स जरूर इनकॉर्पोरेट करें। घी इज गुड। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, सो घी विल एक्सट्रीमली हेल्प दैट पर्सन। सो
वी नीड टू हैव अ बैलेंस। तो उसमें जो अच्छे मेरे फैट्स हैं जो मेरे सीड से आते हैं, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, अब तो सारी जगह अवेलेबल होते हैं, कोई फैंसी आइटम नहीं है, बट दे आर रियली गुड। आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो देने के लिए सूखा सब्जी आप सरसों के तेल में बनाए, गीला सब्जी ऑलिव या रिफाइंड में बनाए, घी में भी बना सकते हैं। बट जस्ट हैव अ क्या कहते हैं उसे, पोर्शन कंट्रोल टू इट। जरूरी नहीं है कि आपको तेल से ऐसे पोर करके डालना है, यूज अ चम्मच। अगर 4 जनों का सब्जी बन रहा है तो 4 चम्मच तेल इज गुड इनफ। आपको जरूरी नहीं है कि कनिस्तर से आपको डालना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी डाइटिशियन आपको हेल्प करती हैं इन सब चीजों को लेकर के। ऑफ कोर्स हमने एनर्जी की बात करी, हमने प्रोटीन्स की बात करी, कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है बिकॉज वो आपके बच्चे के स्केलेटन के लिए, टूथ के लिए, दांतों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दूध आपका, दही, चीज, आपके हरी पत्ते वाली सब्जियां, इन सब में कैल्शियम होता है। विटामिन सी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे टिश्यूज को, हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को, चाहे वो मेरा जितने भी छोटे छोटे मेटरनल फीटल प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, आजकल आंवला बहुत बढ़िया आ रहा है, टमाटर है, आंवला है, आपका ये शिमला मिर्च बहुत सारे प्रकार की आती है, मौसमी है, जितने भी खट्टे फल हैं, कीवी, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा, इन सब में विटामिन सी होता है। तो ये आपके वुंड हीलिंग और रिपेयर ऑफ टिश्यू में बहुत मदद करता है। फोलिक एसिड आपके डॉक्टर भी आपको सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं सो दैट आपके बच्चे को कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आए। हरी पत्ते वाली सब्जियां, खट्टे फल और हाई ऑन फोलिक एसिड। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर मनाली ने भी बोला, बहुत जरूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें। तो सिंपल पानी, वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल सूप्स, नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब आप ले सकते हैं। एंड जो आपका आयरन होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपका बच्चा टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर टू थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत बार आयरन का डिप देखा जाता है, तो खून की कमी हो जाती है, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इसीलिए मुझे शुरुआत से ही ध्यान रखना है। इफ देर आर एनी आयरन सप्लीमेंटेशन प्लीज डू टेक। इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड प्लीज वर्क क्लोजली विद योर डाइटिशियन। अगर आप पत्ते वाली सब्जियां हैं, अगर क्या कहते हैं, आयरन की दवा या टैबलेट्स आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो आपको फूड से उसको बढ़ाना है। तो जितना भी आपका गुड़ होता है, चुकंदर है, अनार है, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, खजूर है, काली किशमिश है, इन सब में आयरन होता है, तो ये सब जरूर लें। इसके अलावा स्मोकिंग ऑफ कोर्स हम मना करते हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बिकॉज वो एडवर्सली इफेक्ट करता है। सो वी डिस्करेज। चाय और कॉफी इज समथिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर कि आप ज्यादा ओवरडू ना कर दें चाय और कैफीन को। दिन भर में 2 से 3 कप इज व्हाट मैक्सिमम यू शुड टेक, चाय कॉफी सब मिला के। तो डोंट ओवरडू ऑन चॉकलेट्स। अगर आपको मीठे का क्रेविंग होता है, ट्राई टू हैंडल दैट विद सम डेट्स या किशमिश। उससे आप अपनी मीठे की क्रेविंग्स को हैंडल कर सकते हो। डोंट ओवरडू दैट। अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पर शुगर, अच्छा आई सी अ क्वेश्चन, सॉरी आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन। एग्स कब ले सकते हैं? एग्स आप पूरा प्रेगनेंसी ले सकते हो, अमनदीप। if that is your question, breakfast is a good time to have eggs. Then अगर आप ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते, हैवी है, सो इन बिटवीन द मील्स आप ले सकते हो उबला हुआ अंडा। एंड अंडे का सैंडविच भी बना सकते हैं आप। एंड उसके अलावा अंडे का भुर्जी या अंडा करी की फॉर्म में भी आप ले सकते हो। स्क्रैम्बल्ड एग, सनी साइड अप, जो अच्छा लगता है, बिकॉज कई बार मैं देखती हूँ बॉइल्ड अंडा नहीं खाया जाता है किसी से, एसिडिटी हो जाती है। लेकिन सेम अगर आप ऑमलेट की फॉर्म में बना करके खाते हैं, सो ऑमलेट की फॉर्म में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप उसको अगर भुर्जी की फॉर्म में या अगर आप उसको करी की फॉर्म में ले लेते हो तो वो बेटर रहता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज इज समथिंग जो मैं बात कर रही थी, कि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर डिटेक्ट होती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाइटिशियन के साथ काम करें कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है उसको आपको डिवाइड करना होता है दिन भर के अंदर। सो कितना कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी ड्यूरेशन में लेना है, सो वो हमें
कैलकुलेट करना पड़ता है, सो उसका ध्यान हमें रखना होता है। एंड coming next to constipation is also one of the problems that I see. So constipation, अगर आपको स्टूल पास करने में तकलीफ होती है, प्लीज इंक्रीज योर फ्लूइड इनटेक। कम से कम 6 से 8 गिलास सिंपल पानी, उसके अंदर अगर आप नींबू निचोड़ना चाहे, पुदीने का फ्लेवर देना चाहे, थोड़ा सा चिया सीड्स डालना चाहे, तो प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलेगा आपको। रेगुलरली एक्सरसाइज करें, और क्या कहते हैं, जो आपका सूखा प्लम्स होते हैं, प्रून्स बोलते हैं, अगर अवेलेबल हो सो आप उसको भी ले सकते हो। दे रियली हेल्प इन पासिंग डाउन द स्टूल इजीली। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी या हार्टबर्न की शिकायत है, तो छोटी छोटी मील्स लें। जरूरी नहीं है आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर ही खाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हैं। अपना लिक्विड का इंटेक बढ़ाएं। स्मोकिंग, कैफीन, चॉकलेट्स, इसका इंटेक आप कम करें। प्रॉपर नींद लें। नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर योर सेकेंड टूवर्ड्स योर सेकेंड ट्राइमेस्टर, बिकॉज हमारा जो वजन है वो पेट आगे की तरफ हमारा होता है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग ऑन, इट टेक्स अ टोल ऑन द बैक। तो बैक पेन्स और वो सब बहुत होता है, जिसकी वजह से सोने में भी और तकलीफ होती है। तो नींद आपकी वैसे ही थोड़ा बैंड बज जाती है नींद की। सो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसी हार्ट बर्न या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम अगर हमें हो रहा है, तो हम थोड़ा सा अपना लिक्विड और मील्स का इंटेक को प्रॉपर करें। सो जस्ट टू समराइज, 3 चीजें ध्यान में रखनी है, ए, बी एंड सी। A is avoiding the bad habits, B is building good habits, and C is your consistent checkups, meeting your doctor, meeting your dietitian for the nutritional guidance, meeting your physiotherapist for exercise support, and regular टेस्टिंग एज एंड व्हेन डायग्नोस्टिक्स जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। सो सही वक्त पर सही टेस्ट करवाएं, उन्हें मदद करें, सो दैट वी आर एबल टू हेल्प यू डिलीवर बेटर। सो जस्ट इन केस अगर किसी को मुझसे बात करनी हो, दे कैन कनेक्ट विद मी। दिस इज माय फोन नंबर, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। यू कैन ब्लॉक अ टाइम फॉर कंसल्टेशन, फॉर 1-to-1 कंसल्टेशन, एंड हैप्पी टू हेल्प। आई होप कुछ आपको इससे वैल्यू ऐड हुआ होगा, आपके काफी क्वेश्चंस आंसर हुए होंगे। एंड इन केस यू हैव मोर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क in the chat box, or you can unmute yourself and you can ask. Over to you, Dr. Moini. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I think there are some questions in chat box. I have answered all the questions Okay, in the chat done. box. If Okay. there are any more, happy to take them further. Thank you, ma'am. It was really wonderful session. और किसी को कुछ भी डाउट है, I just want to conclude with this. In pregnancy, iron and calcium, these are not for the deficiency, these are supplementations. You have to take them. Patients का होता है मेरा Correct. 11 HB है, 12 HB है, मैम अच्छा है, हमारी डाइट बहुत अच्छी जी है, हमने दवाई नहीं लेनी। तो इन प्रेगनेंसी इट्स नॉट फॉर द डेफिशिएंसी, ये सप्लीमेंटेशन होता है एक्स्ट्रा, बिकॉज बाय फूड यू आर नॉट एबल टू गेट इट, इवन इफ यू टेक योर बॉडी इज नॉट गेट टू अब्सॉर्ब इट, सो यू नीड टू टेक right. इट एज अ सप्लीमेंटेशन। सो खाने का काम Absolutely. खाना, मेडिसिन का काम मेडिसिन। So we'll बिल्कुल proceed. बिल्कुल. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So we'll proceed on the next session. That is the Garbha Sanskar by Dr. Swarupanjali Pawar. She's my batchmate. And thank you, audience and participant. Because of you, I'm meeting her after literally after 20 years. We did a video chat. So thank Hello, you. everyone. So and for Hello, this hello. session I am also excited, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी वेरी फ्रैंक नहीं, तभी मुझे पता चला था कि ऐसा कुछ होता है, एंड मैंने देखा है स्वरूपांजलि का काम, तो इट्स वंडरफुल। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, स्वरूपांजलि, व्हाट यू आर गोइंग टू से, ऑल टू यू। Thank you. Thank you very much. Thank you, Mohini madam. Thank you, Kanika madam, Manali madam. Thanks for giving us opportunity. This one. So basically, गर्भ संस्कार क्या होता है, उसका यूज कैसा होता है, कैसे वो वर्क कर पाता है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन हम आज देखेंगे। तो बिफोर बिगिनिंग, आई वांट टू शेयर सम PPTs. Dr. Mohini madam, can you just make me co-host? ओहो मैम, आप हो नहीं, एक I मिनट। just allowed, आप एक बार चेक करें, you should be able to project.
हाँ, डन। Wait, I can't. Yeah, got it. Yeah. So hope so. My screen is visible. Yes, yes, it's visible. Yes, thank you. सो गर्भ संस्कार के बारे में बहुत सारे कंसेप्शंस मिसकंसेप्शंस रहते हैं। तो कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है और उसका साइंटिफिक बेस क्या है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो जो भी गर्भ संस्कार है एक्चुअली प्रेगनेंसी में तो ये यूजफुल है ही, नो डाउट। बट बिफोर प्रेगनेंसी आल्सो इट्स मोस्ट यूजफुल, बिकॉज अगर आपने बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसेप्शन 3 मंथ्स, मतलब 90 डेज का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम है या फिर 90 डेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रहता है फॉर बोथ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो इट इज मोस्ट बेनिफिशियल। क्योंकि जो कुछ एबनॉर्मलिटीज रहती है, मतलब डीएनए स्ट्रक्चर में या फिर क्रोमोसोम्स में, वो हमको 1 या 2 जनरेशन तक ही पता होते हैं। लेकिन बिफोर दैट what happened, which diseases we are carrying, we don't know exactly about that. So for that anomalies filtered out, we have to do panchakarmas, some procedures. There are also many yogasanas, there are diet, some restrictions, बहुत सारी चीजें उसमें आयुर्वेदा की तरफ से हमको वो फॉलो करनी है। बट आज हम फोकस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में हम कौन सी चीजें करने वाले हैं या फिर किस तरह से हमको ये सब फॉलो करना है, ये हम देखेंगे। तो जस्ट ये सब इंस्ट्रक्शंस है कि आप अगर वीडियोस ऑन करना कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम जब हैप्पी फेसेस देखते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बोलते हैं कि ऑल प्रेग्नेंट वुमन आर ब्यूटीफुल, सो व्हाई आर यू क्लोजिंग योर कैमराज एंड ऑल दैट। सो पॉसिबल, turn on your cameras so that we can interact very easily and the session will go on. Then just want to introduce myself. What is Janani Garbha Samskar and what we have done till now. We are working since 12 years, India and abroad. We have published many international and national papers also in Thailand, in Dubai conferences. Janani has recognized their paper publication. Uh, this is 50,000 when we have done before 2 years this PPT, but just now we have crossed 1 lakh. 1 lakh Garbha Samskar have totally completed with your all support and blessings. We also do various social activities. We have also connected with NGOs. बहुत सारे संस्था जो सामाजिक काम करते हैं उसमें हम बंधे हुए हैं। उसमें भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज किए हुए आज भी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लोकमत है, भास्कर ग्रुप है, सखी मंच है, इन सबके साथ हमने काम किया है। जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स जो रहते हैं वहां पे भी हमने काम किया है। और एक सोशल कॉज के लिए जो सिंधुताई सपकाळ, आपको पता होगी कि जो अनाथ की माँ ऐसे उनको बोलते हैं, तो उनसे भी रिकॉग्नाइज किया है। और सह्याद्री आरोग्य रत्न 2019 का जो हेल्थ केयर में जो प्रीशियस अवार्ड रहता है वो भी जननी को मिला है। और लोकमत एक्सेलेंस अवार्ड ये भी मिला है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, इट्स नॉट सेइंग हाउ वी आर ग्रेट, बट इट्स जस्ट गर्भ संस्कार इज चेंजिंग एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ गर्भ संस्कार इज very much positive now. So we have to do in our pregnant life या फिर our pregnancy में अगर हम इसको implement करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हम मतलब प्रेग्नेंट जो लेडी है उसके ऊपर भी देखते हैं और बेबी के ऊपर भी देखते हैं। मतलब एएनसी केयर इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू ओनली अप टू डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, बट एक्चुअली इट इज a life transforming program. So these are some snaps. We have taken programs like this. These are workshop. These are online sessions we have conducted. So what are the aims of गर्भ संस्कार? जननी गर्भ संस्कार की एम क्या है? तो उसमें पिलर्स है कि एक्चुअल गर्भ संस्कार का मीनिंग क्या है, गर्भ संस्कार हमको कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसमें क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और ये हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो वन बाय वन कि एक जननी यानी कि माँ जो मदर होती है, जो एक न्यू बॉर्न मतलब एक न्यू लाइफ क्रिएट करने की उसमें पोटेंशियल रहती है कि जो हर किस में नहीं है। तो इस तरह की जो एक स्त्री है उसको जननी यानी कि माँ ऐसा बोला जाता है। और गर्भ की व्याख्या यानी कि गर्भ की डेफिनेशन आयुर्वेदा में दी है
कि शुक्र एंड शोनित यानी कि स्पर्म एंड ओहम जब यूनाइट होते हैं और उसमें जब एक नए जीवन का प्रवेश होता है, तब जाके उसको गर्भ यानी कि फिटस ऐसे बोला जाता है। सिर्फ ओहम का और स्पर्म का मिलन होना दैट्स नॉट इज इक्वल टू गर्भ। अगर ऐसा होता तो हर एक आईवीएफ का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता। लेकिन आईवीएफ का रिजल्ट अगर आपने देखा होगा तो 100 आउट ऑफ 20 कपल्स ही सक्सेस हो पाते हैं, वो भी अगर वो आईवीएफ सेंटर या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो सब तरफ के नॉर्म फॉलो करते हैं, सब टाइप के वो जो अगर क्या बोलते हैं अ, जो कि रिकॉग्निशन रहते हैं वो अगर फॉलो करते हैं तो ही जाके उसमें हमको 20% रिजल्ट देखा जाता है। सो बेसिकली सिर्फ स्पर्म का और ओहम का यूनियन होना ये गर्भ नहीं है, उसको गर्भ नहीं बोलते। तो उसमें जीव यानी कि नई आत्मा का प्रवेश होना ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज संस्कार, जैसे कि हमने गर्भ की डेफिनेशन देखी, तो व्हाट इज संस्कार? संस्कार इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और चेंजिंग ऑफ क्वालिटीज। लाइक मिल्क से हम जैसे घी बनाते हैं, तो मिल्क से घी बनाने की प्रोसेस में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हर एक स्टेज में उसमें क्वालिटीज ऐड होते हैं। सेम लाइक दैट हम जिसमें संस्कार करते हैं तो जो एडेड जो अच्छी क्वालिटीज है यानी कि जो हमको डिजायरेबल क्वालिटीज है वो इंक्रीज करना है। यानी कि मैटरनल एंड फादर मतलब मदर एंड फादर से जो अच्छे क्वालिटीज आ रहे हैं उनको हमको इम्प्रूव करना है। और जो भी कोई नई नहीं चाहिए या फिर जो भी कुछ निगेटिव क्वालिटीज है उसको हमको माइनस करना है सिंपली। दैट इज कॉल्ड एज संस्कार। सो तो हाय गर्भ संस्कार इज नेसेसरी। गर्भ संस्कार हमको क्यों करना है? क्योंकि पेपर ऑफ जिनेवा में ये फेमस पब्लिश हुआ है कि जो इंटरनेशनल पेपर है जिनेवा का, आप गूगल भी कर सकते हैं कि 280 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन आर फाउंड इन कॉर्ड ब्लड दैट इज बॉडी बर्डन। मतलब जब बेबी का जन्म होता है, कॉर्ड कट की जाती है, तो उसमें हमको 280 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो फिलहाल पोल्यूशन है, बहुत सारी अनवांटेड चीजें हमारे आसपास दिखाई देती है, तो इस सब का इफेक्ट जो है वो न्यूबॉर्न बेबी पे भी दिखाई देता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कॉर्ड ब्लड रहता है वो बहुत ही प्योर फॉर्म में रहता है, उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटीज या फिर कुछ भी इम्प्योरिटीज उसमें नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर रिसेंट रिसर्च ये बताता है कि कॉर्ड ब्लड भी अभी सेफ नहीं रहा है या फिर बेबी का जो सर्कुलेशन है तो वो भी हैम्पर्ड हो गया है। तो इसलिए हम उसको क्या पास ऑन कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो ये सबको हमको मिनिमाइज करना है। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको प्योर ऑफ क्वालिटीज यानी कि प्योर ऑफ जो थिंग्स है वो हमको पास ऑन करनी जरूरी है। तो ये ऐसी सिचुएशन सब है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो गर्भ संस्कार के दायरे से मैंने जैसे बोला कि जो हमको चीजें नहीं चाहिए या फिर जो क्वालिटीज हमको नहीं चाहिए तो वो हम सिंपली एलिमिनेट कर देंगे, और जो हमको चाहिए वो हमको और उसको बढ़ावा देना है और या फिर और उसका मतलब इंक्रीज करना है। तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक एंगल्स भी हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स उसमें हुए हैं, बहुत सारे गर्भवती पे उसमें रिसर्च हो गए हैं। तो ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है? तो डॉक्टर हेनरी ट्रबी 1960s में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उनको ये बात समझ में आई कि 6 मंथ्स का जो बेबी रहता है वो इन वूम यानी कि मदर के गर्भ में ही वो सब सुन सकता है, उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है और उस तरह से वो ग्रो भी कर सकता है। सो जो हम चीजें उसमें इम्प्लीमेंट करती है मतलब जो भी चीजें हम प्रेगनेंसी में इम्प्लीमेंट करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट बेबी के डेवलपमेंट पर होता है। चाहे हम जो भी चीज कर रहे हैं मतलब प्रेग्नेंट मदर अगर रील्स देख रही है या फिर वो कुछ टीवी देख रही है या फिर वो रीड कर रही है, व्हाट एवर मे बी, प्रेग्नेंट मदर जो फॉलो कर रही है उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट डेवलपिंग बेबी पे हमको दिखाई देगा। सो और मतलब डॉक्टर हेनरी ट्रेबी की रिसर्च भी यही बताती है कि आप जो भी कुछ करते हैं उसको मैनेज करना, उस तरह का आचार विचार प्रेग्नेंट लेडी में फॉलो करना कि जैसा आप बेबी चाहते हो वैसा ही आपको आचार मतलब रूटीन रहना है, वैसा ही आपको सब चीजें आपके रूटीन में फॉलो करनी है। तो ये कुछ प्रोमिसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो हमको इम्प्लीमेंट करना है इन प्रेगनेंसी एंड अप टू डिलीवरी भी।
क्योंकि दीज आर अफेक्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को आप ये प्रोमिसेस देते हो या फिर सबकॉन्शियस माइंड को आप इस तरह से ट्रेन करते हो, तो एग्जैक्टली उस टाइप के केमिकल्स, उस टाइप के हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस में सिक्रेट होने लगते हैं। तो ये आपको रिसस्किटेट करना है, उसका उच्चारण करना है जब भी आपको पॉसिबल है, या फिर सुबह उठने के बाद भी अगर आप एक 4 से 5 बार इसका उच्चारण करते हो, तो इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर अपकमिंग बेबी। देन कुछ इपिजेनेटिक एडाप्टेशंस है, यानी कि कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के बारे में, जैसे आप मैंने बोला कि हर एक कैरेक्टर का जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। यानी कि समझो मेरी हाइट ज्यादा है तो हाइटेड का जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। किसी की स्किन फेयर है तो फेयर इन कलर का जीन्स उसके बॉडी में प्रेजेंट रहता है। किसी का कलर डार्क है तो वो डार्क कलर की जीन्स उसके बॉडी में प्रेजेंट रहती है। ये कौन बताता है? तो ये ऑल इंक्लूडेड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ ओल्ड ब्रांच, बट इपिजेनेटिक्स इज द अपडेट ऑफ दैट जेनेटिक्स फॉर्म। इपिजेनेटिक्स क्या बोलता है कि सिर्फ जीन्स प्रेजेंस होना ये काफी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक शो होने के लिए। अगर जीन्स का एक्सप्रेशन हम चेंज कर सकेंगे तो उसमें बहुत सारे बदलाव हम कर सकते हैं। यानी कि हर एक कैरेक्टर के 2 जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, उसको डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसे बोलते हैं। यानी कि हाइटेड अगर पर्सन है तो उसमें हाइट के भी जीन्स प्रेजेंट होंगे और शॉर्ट इन हाइट के भी जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो इपिजेनेटिक से हम कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर इस तरह से एक्सेस कर पाते हैं, या फिर अगर हमने एक्सटर्नल कंडीशंस मॉनिटर किए तो उस कंडीशन में हर टाइप के जो डोमिनेंट जीन है वो हम उसमें स्टिमुलेट कर पाते हैं, या फिर वो हम उस तरह से उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, और वही कैरेक्टरिस्टिक हमको बेबी में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के चेंजेस हमको करना है ड्यूरिंग 24 to 28 वीक्स। और एग्जैक्टली मतलब यू कांट इमेजिन, मे बी आपको ये थोड़ा ओवर सेंटेंस लगेगा या फिर ओवर एग्जैगरेटेड सेंटेंस लगेगा, बट इट्स ट्रू। मतलब जिस टाइप के क्वालिटीज मदर एक्सपेक्ट करती है, जिस टाइप का वो सोच रखती है, एग्जैक्टली वैसे ही चेंजेस हमको बेबी में दिखाई देते हैं। उसमें कुछ भी 19-20 नहीं होता। मैं आपको वो लाइव एग्जांपल पे दिखा सकती हूँ कि किस टाइप के चेंजेस हमको बेबी में दिखाई देते हैं और किस टाइप के चेंजेस उसमें हमको करना है। तो अभी डाइट के बारे में भी इसमें बहुत सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन मैंने मैडम ने जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। सो मैं वो जरूरी नहीं समझती। होप सो कि आपके जो डाइट के जो डाउट्स है वो पूरे क्लियर हुए होंगे। और उसका जो मतलब मेन थीम है कि जो हम बोते हैं या फिर जो भी हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, वही चीजें हमको बेबी में दिखाई देती है। इट इज एज सिंपल एज लाइक दिस। क्योंकि अगर हमको गेहूं पेरना है या फिर गेहूं का खेती हमको करना है, तो उसको सीड्स, गेहूं के ही सीड्स हमको लगेंगे, तो ही जाके हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे या फिर गेहूं हमको दिखने मिलेंगे। सेम लाइक दैट गर्भ संस्कार में जो भी चीजें मदर इम्प्लीमेंट करती है, जो भी चीजें मदर फॉलो करती है, उसी टाइप के चेंजेस हमको बेबी में दिखाई देती है। इट्स एज सिंपल एज लाइक दैट। सो क्या बेनिफिट्स होते हैं जब आप गर्भ संस्कार करते हैं? गर्भ संस्कार करके आपकी डिलीवरी होती है, तो उसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होते हैं वो बहुत अर्ली दिखाई देते हैं। लाइक कि जो 3 मंथ्स के जैसे सोशल स्माइल है वो 1.5 मंथ में दिखाई दिया। 6 मंथ्स का जो टर्निंग अप का माइलस्टोन है वो सिर्फ 3 मंथ्स में ही दिखाई दिया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जो है बेबी की वो बहुत फास्ट होती है और बहुत ऑर्गेनाइज तरह की होती है। इसलिए वो जो भी अचीव करना चाहता है या फिर जो भी उसकी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से वहां हमको दिखाई देती है। एंड ऑफ कोर्स इट इज बेस्ट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि 80% जो डेवलपमेंट है वो वोम में ही यानी कि गर्भ में ही होती है। इसलिए ये सब चीजें हमको अभी इम्प्लीमेंट करना है। अदरवाइज फिर हम आफ्टर डिलीवरी या फिर बेबी 1 साल होने के बाद, 2 साल होने के बाद ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन इट्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बेस्ट है। इसके लिए हमको प्रेगनेंसी में ये सब चीजें करना जरूरी है। प्रेगनेंसी में जो कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि पीआईएच है, बैक पेन है, या फिर डिस्कम्फर्ट है, इसका प्रॉब्लम, ये सब मतलब जो भी कुछ दिक्कतें आती है प्रेगनेंसी में, इसका भी सॉल्यूशन हमको गर्भ संस्कार में मिलता है। जो डिस्कम्फर्ट है वो कम होते हैं। कई बार रिपोर्ट्स में भी हमको चेंजेस दिखाई देते हैं। एंड मोस्ट यूजफुल दैट इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे एंगल्स हैं। नॉर्मल डिलीवरी टेक्निक कैसी है वो हमको पता होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पेल्विक मसल में सुदनिंग होनी चाहिए, जो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वो हमको अचीव करना चाहिए।
उसके लिए कुछ डाइट सप्लीमेंट हमको पहले से ही मतलब लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, वो हमको उसमें ऐड करना है। और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कि नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस कैसे रहती है, उसमें क्या क्या स्टेजेस फॉलो करना है और कौन से स्टेजेस में हमको क्या असिस्ट करना है, ये भी हमको यहाँ सीखना है। तो ये अगर हम सीखते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है, तो 80 to 90% ऑफ नॉर्मल डिलीवरी इसमें दिखाई देती है, और सी सेक्शन का जो पोर्शन है वो कम होता है, ये हमको दिखाई देता है। और इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डिजाइन बेबी। मैंने जैसे बोला कि हम जैसे ही डिजाइन करते हैं, जैसे ही इमेजिन करते हैं, वैसे ही हमको बेबी वहां दिखाई देता है। मैंने जैसे बोला आपको कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन बहुत अर्ली दिखाई देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इट्स ओनली 1.5 months baby. So it is how cute and how smiley you can see. तो उसके ऑलरेडी ब्रेन डेवलपमेंट उसकी हुई होती है। सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, बहुत सारे रोज पेशेंट हमको टेक्स्ट करते हैं कि मैडम हमारी डिलीवरी हो गई, ये चेंजेस उसमें देख रहे हैं। दिस इज ओनली 5 months ऑफ बेबी, कैन यू महलों की इमेजिन? रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशान। तो इस तरह से कि जो सिटिंग माइलस्टोन है वो 8 and onward दिखाई देता है। तो वो स्नेहल मैडम है जो यूएसए से है, और उन्होंने दोनों भी बेटे के वक्त हमारे यहाँ गर्भ संस्कार फॉलो किया, और वैसे चेंजेस उनको दिखाई दे। ये आईवीएफ बेबी है, लेकिन उसका पूरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया, क्योंकि आईवीएफ बेबी इज वेरी प्रीशियस कैटेगरी का रहता है। तो उसमें मतलब प्लान सीजरिंग रहता है, प्लान सेक्शन ही रहता है, लेकिन सब चीजें फॉलो करने के बाद उनका बहुत अच्छा खासा डिलीवरी हो गया। अभी की सिचुएशन क्या है कि जब हम देखते हैं कितने प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, न्यू पेरेंट्स जो है उनको कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये आप देख सकते दोस्तों हैं। जब से हमको बेटा हुआ है पूरी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो चुकी है। जब उसको नींद आती है तब हमें नहीं आती, और जब हमें सोना होता है तब वो सोने नहीं देता है। पूरा टाइम दिन रात ऐसा हो चुका है कि समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है आंखों के बीच में खड्डे पड़ चुके हैं। रोने लगा। चलो, आप देख सकते हैं कि इतने सारी दिक्कतें न्यू न्यू जो पेरेंट्स रहते हैं, बेबी केयर का जो प्लान रहता है, फिर बेबी का जो कोऑपरेशन रहता है, वो अच्छी तरह से वहाँ आपको मिलता है। तो इस तरह से डिजाइन में भी जैसे आपको बोला कि हम जो भी कुछ डिजाइन करते हैं, जस्ट लाइक उसके आईज, नोज, वॉट एवर में भी कैरेक्टरिस्टिक हम एग्जैक्टली हमको उसी तरह से दिखने देते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हो कि कलर ऑफ हिज आईज, हाइट, फेस, स्माइल, हेयर, एवरीथिंग इज सेम लाइक आई इमेजिन ड्यूरिंग द डिजायर बेबी सेशन। आई कुडंट बिलीव दैट इट वर्क लाइक अ मिरेकल। सो मैंने जैसे बोला कि मे बी ओवर एग्जैगरेटिंग सेंटेंस आपको लग सकता है, लेकिन इट्स ट्रू और इट्स हैपन्स। तो कैसे होता है कि इमेज में आपको दिखाई मतलब शो करती हूँ। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक जस्ट बॉर्न बेबी है, उसका क्लैम्प आप देख सकते हो, उसकी मूवमेंट्स देखो, उसकी स्माइल देखो। ऐसे बहुत सारी चीजें हमको यहाँ देखने को मिलती है। ये भी दुबई के कपल है, इन्होंने एक्चुअली लोकमत में फीडबैक दिया है। इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं हमारे, डेली सेशंस रहते हैं, डेली आपको सब एक्टिविटीज फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने, हाँ, दैट व्हाट आई वांट टू शो यू, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज लाइक दैट। क्योंकि ये बेबी के जो मदर है उनकी इच्छा थी कि मेरा बेबी जो कृष्ण की तरह होना चाहिए, इट मस्ट बी सेम एज लाइक दैट। तो उसकी नोज, उसके आईज, उसका स्माइल वो सेम देखो। तो उस तरह से हमने उनको डिजाइन किया, उस तरह की एक्टिविटीज उनको दी गई। तो आप मतलब पहचान नहीं सकते को रियल कौन सा है और पोस्टर का कौन सा है। तो इतने उसमें चेंजेस अच्छी तरह से आ जाते हैं, और इतना हमको उसमें इम्पैक्ट दिखाई देता है। क्योंकि जो भी कुछ चीजें हैं वो सब मतलब साइंटिफिक बेस, जो जैसे मैंने बोला कि इपिजेनेटिक्स जैसे वर्क करता है, उस टाइप के ये सब चीजें हमको यहाँ इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है। तो किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। रुमांजलि, मुझे नहीं लगता किसी को क्वेश्चन है। सब मतलब मैं खुद सब शॉक है आई थिंक,
देख के मैंने तो बोली ना, सुना था, ये किया था खुद। आई थिंक मतलब यस 15 मिनट्स टाइम बहुत कम है टू डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली। मैं चाहती हूँ एग्जैक्टली। कि तुम थोड़ा ये बताओ कि गर्भ संस्कार में व्हाट यू डू, मतलब डेली सेशंस में क्या कराते हो पेशेंट्स को, क्या कुछ एक्सरसाइज होती है, अलग ब्रीदिंग अलग, हाँ टेक्निक? अलग अलग रहते हैं, ये भी अच्छा है। अभी अलग अलग टाइप्स के भी पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं, जैसे कि किसी का आईवीएफ हुआ है, किसी के मल्टीपल मिसकैरेजेस है, किसी का अभी अभी मैरिज हुआ है लेकिन अभी अभी कंसीव भी हुआ है, या फिर किसी का प्लेसेंटा प्रीविया है, किसी का प्रीवियस एक दो सीजर हुए हैं। ऐसे अलग अलग टाइप्स के पेशेंट्स रहते हैं, राइट। सो उनको जो नेसेसरी है या फिर उनको जो भी चीजें नेसेसरी है उस टाइप के वो बैचेस रहते हैं, और वो बैचेस में हम डेली योगा एक्टिविटी रहती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स रहती है, कुछ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज रहती है, मेडिटेशन रहते हैं, म्यूजिक थेरेपीज रहती है। ऐसे अलग अलग उनके शेड्यूल रहते हैं, उन शेड्यूल के हिसाब से उनको एक्टिविटीज दी जाती है और उस तरफ से वो फॉलो कर सकते हैं। मतलब जो अगर मैं इसका समरी लूं इन्फ्रेंस, तो आई थिंक समरी स्कूल ऑफ मैनिफेस्टेशन, एक स्कूल में जैसे सारी एक्टिविटी नो नो क्लासेस नो नो होते नो हैं नो, कि वैसे बहुत देखो सारे। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है डेफिनेटली, उसका कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशन इज जस्ट वन थिंग दैट कैन आई से इट इज 10% पार्ट मे बी। बट हम जो करते हैं जैसा आपने सुना होगा कि इपिजेनेटिक्स ये ब्रांच है, आप उसमें सर्च भी कर सकते हो। तो इपिजेनेटिक्स का क्या कहना है कि जीन्स एक्सप्रेशन के लिए उस टाइप का एनवायरनमेंट होना ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन्स प्रेजेंट होगा, अब तक ये था, मतलब बिफोर 10 years सिर्फ जेनेटिक्स की चलती थी, या फिर जेनेटिक्स वाज द प्राइम, ठीक है, जेनेटिक्स जो बोलेगा वही होगा। लेकिन आफ्टर दैट मतलब बिफोर बिफोर 10 years इपिजेनेटिक्स इज अ मिराकल। इपिजेनेटिक्स क्या कहता है कि सिर्फ जीन्स का होने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो एग्जैक्टली जो मदर एंड फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एग्जैक्टली हमको बेबी में दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें होती है कैरी, और कुछ चीजें जो है हमको अलग ही दिखाई देती है। या फिर जो ट्विंस भी हो, या फिर जो सेम सेम ब्लड रिलेशन वाले सिस्टर या फिर ब्रदर हो, या फिर दो सेम सिस्टर हो, उनको भी हमको भेद दिखाई देता है, राइट। बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, एम आई राइट। सो ये डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, तो इसका आंसर हमें इपिजेनेटिक्स में मिला। एपिजेनेटिक्स क्या कहता है कि सिर्फ जीन्स का होना काफी नहीं है। अगर सेम ब्लड रिलेशन के सिस्टर्स है तो उनके 70% जीनोटाइप मैच होते हैं, 70% जीन्स आर सेम। बट 30% में ऐसा क्या चेंज हो गया है कि वो पूरे अलग कैरेक्टर्स के हो गए, क्योंकि किसी को खट्टा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को बहुत सजना पसंद है, किसी को नॉर्मल रहना पसंद है, किसी को बहुत शो ऑफ करना पसंद है, किसी को बहुत डाउन टू अर्थ रहना पसंद है, राइट। ये क्वालिटीज हम देखते हैं रोज। तो ये क्यों आती है, तो ये एपिजेनेटिक्स में आती है कि उस टाइम मतलब उसके प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने क्या फॉलो किया, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका मतलब एनवायरनमेंट उसका कैसा था, उसका पूरा परिणाम वो चीज के एक्सप्रेशन पे पड़ता है। और जो चीज वहाँ मतलब एक्सप्रेस हो गया, या फिर जो जिन के लिए उसमें एनवायरनमेंट अच्छी तरह से हमको मिल गया, तो वही कैरेक्टरिस्टिक वो बेबी के लाइफ टाइम को दिखाई देते हैं। दैट इज द मेन थिंग। गॉट इट। गॉट इट। यस। या तो सो ये हम मतलब ये आयुर्वेदा में बताया है कि गर्भ संस्कार इज पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो भी लाइफस्टाइल बताई है, या फिर जो भी कुछ चीजें अच्छे मैटरनल एंड फिटल हेल्थ के लिए बताई है, वो सब हमको यहाँ फॉलो करनी है। गॉट इट। मैनिफेस्टेशन का बोलते हैं तो अफर्मेशन सेशन रहता है उसमें, तो अफर्मेशन का भी हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ रोल नहीं है, मतलब आई थिंक लेकिन होलसम एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, होलसम एक्सरसाइज, डाइट, थिंकिंग एग्जैक्टली प्रोसेस। ऑल इन वन प्रोसेस। हाँ वैसे भी नहीं, तो पहले जो रहता है ना, मतलब हम जब फर्स्ट अभी थोड़ा सा बैक जाके मैं बताना चाहती हूँ कि 12 साल बिफोर 12 years हमने जब शुरुआत की, तो यहाँ के पब्लिक को पता ही नहीं था कि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी में ये किए जाते हैं। तो मतलब यहाँ से भी हमने उनको एजुकेट करना शुरू किया, वहाँ या फिर उनसे ऐसा सब सिखाया कि क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं, कि किसके लिए ये गर्भ संस्कार जरूरी है। तो वहां तो फिर वो अवेयरनेस स्टार्ट हुई, वो उस टाइप की एक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गर्भ संस्कार का इम्पैक्ट हमको मतलब अभी तुरंत प्रेगनेंसी में नहीं दिखाई देता है, लेकिन आफ्टर ओवर द टाइम जैसे ही बेबी ग्रो होता है, उसके माइलस्टोन दिखने लेते हैं, तो
पूरे फैमिली को भी ये पता चलता है कि नहीं, समथिंग इज डिफरेंट, कि इसमें कुछ चेंजेस अलग है, या फिर ऐसे भी हमको पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पूरे खानदान में ऐसा बेटा नहीं है, या फिर पूरे खानदान में ऐसा मतलब बेबी किसी का भी नहीं है, तो बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं, हाँ, यस, इट्स एक्चुअली वर्क्स एंड इट्स एक्चुअली नेसेसरी फॉर दिस प्रेजेंट एरा। क्योंकि माँ जो है अभी वर्किंग है, उसका भी एक शेड्यूल है, उसका भी एक पैशन है, उसका भी एक करियर है, तो नॉट नेसेसरी कि वो हर टाइम अवेलेबल हो, या फिर हर एक स्टेप पे बेबी के लिए वो वक्त दे सके। इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट? तो उसकी जो इनबिल्ट कैपेसिटी है वो अगर डेवलप हो गई, तो उस टाइप का फिर हम बेबी में अच्छी तरह से सब बदलाव ला सकते हैं, या फिर बेबी को उस तरह के जो चेंजेस है वो हमको ऑटोमेटिकली दिखाई दे सकते हैं। सो इसलिए हमको ये 9 मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमको ये काम करना है। ठीक है। So I think we are shooted the time. तो यस, थैंक यू स्वरूपांजलि, बहुत वेरी 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 नाइस, मतलब इट वाज लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन था, इट वाज वेरी नाइस। होप टू कनेक्ट यू विद इन फ्यूचर एंड अब तो डॉक्टर स्वरूपांजलि का किसी को भी कनेक्ट करना है, मैम डाल देंगे इसमें, एंड मतलब यू कैन जस्ट गूगल एंड शी विल बी देयर, मैं शी इज क्वाइट यहाँ रिनाउंड। क्लिनिक का कांटेक्ट नंबर भी डालती हूँ, किसी को अगर हाँ, कुछ ये चाहिए तो। इन्फॉर्मेशन चाहिए। But just to last, the main purpose of this webinar was कि अगर 2 स्टेप हमें बेस्ट, क्योंकि हम अपने लिए भी बेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए भी, एंड ये तो anybody who want to best of best, yes, these things available, जैसे ही डॉक्टर स्वरूपांजलि ने कहा है कि ये 10 साल पहले नहीं था, ये पता है, तो बिल्कुल, ऑब्वियसली वहां हर चीज जब बेस्ट से बेस्ट, नई टेक्नोलॉजी, नए अपग्रेडेशन ऑफ फोन करते हैं, हम अपना जब फोन अपग्रेड करते हैं, व्हाई नॉट टू अपग्रेड आवरसेल्फ? तो समथिंग इज अवेलेबल, यू शुड नो। और मुझे लगा कि हाँ, ये चीज नहीं है यहाँ पे, सो आई थॉट इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स के लिए हम कर सकते बिल्कुल। हैं, और तो पेशेंट को भी कैसा है कि हर एक चीज के लिए अलग अलग सर्च करना पड़ता है, नहीं कि प्रेगनेंसी है तो मतलब अलग से डायटिशियन को हम्म कॉल करना है, अलग से हमको योगा ट्रेनर चाहिए, अलग से हमको गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, अलग से हमको आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी चाहिए, तो ये अलग 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 चीजें, और मे बी मेट्रो सिटी में इजीली अवेलेबल हो सकती है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे किसी जैसे के छोटे पास। शहर में ये नहीं होता है, तो ये अंडर हम्म, इन वन रूफ ये सब चीजें हम उसको इंक्लूड इसमें ऑलरेडी किया है। ठीक है, थैंक यू, होप टू सी यू Yes, सून एंड thank you, Dr. Mohini, for inviting us. नो Thank नो, you very much. It was a थैंक यू, great time थैंक with you यू। all.